एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग सेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। फूड की कहानी स्टार्ट हुई थी न्यूट्रिशन से एंड अब तक हमने फूड को डाइजेस्ट भी कर लिया है एंड फूड को एब्सॉर्ब भी कर लिया है इनटू द ब्लड। अब हम आते हैं एट द फाइनल स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जहां पर हम इस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। हमें जो एनर्जी फूड से चाहिए थी, वी कैन से इट इज स्टिल लॉक्ड इनसाइड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। So we need to unlock this energy by breaking down glucose and इसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं respiration. So we can define respiration as respiration is the process of oxidation or breaking down of organic compounds, particularly glucose, to release energy. अब दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। These are breathing and respiration. Is breathing and respiration one and the same thing? The answer is no. Breathing is just the exchange of gases. हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल देते हैं। That is breathing. And respiration is using oxygen to break down glucose. This oxygen is obtained from breathing. Hence, we can say that breathing is a part of respiration. Second point of difference is कि respiration is a chemical process. क्योंकि यहाँ पर chemical bonds are being broken, while breathing is just a physical process. Moving ahead, let us study about the events of respiration. We can divide the events of respiration under the following four headings. First one is breathing. Second is gaseous exchange at the level of lungs. Third is again gaseous exchange but at the tissue level. And the fourth one is cellular respiration. Let us first begin with breathing. We have already discussed कि हम oxygen rich air को अंदर लेते हैं. This process of intake of oxygen-rich air is known as inhalation and giving out carbon dioxide-rich air is known as exhalation. We can easily check this through an activity which is given in your NCERT. हम जब air blow करते हैं through freshly prepared lime water, it quickly turns milky. This proves the presence of carbon dioxide in the exhaled air. Coming to the second step, ऑक्सीजन जो हमने ब्रीद इन किया था, now it will reach the lungs. Lungs इस ऑक्सीजन को ब्लड को दे देगा and in turn blood lungs को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा which we breathe out. So here the exchange is taking place between the lungs and the blood. अब क्या होगा, at this point हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब फूड भी है एंड ऑक्सीजन भी है। ब्लड इस फूड एंड ऑक्सीजन को पहुंचाएगा टू द टिश्यूज। एट द टिश्यू लेवल, टिश्यूज जो कि डेफिशिएंट है ऑक्सीजन में, दे विल रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड CO2 which is present inside the tissues, it will enter the blood. All this occurs by the process of diffusion. गैसेस अपनी हायर कंसेंट्रेशन से मूव करती हैं टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। Clear? Coming to the final step, which is cellular respiration. अब food and oxygen हमारे सेल के अंदर है. Cell will use this oxygen to break down the food and release energy. Now this is not as simple as it seems. It consists of a series of complex reactions, but class 10th level पर हमें इसका सिर्फ एक simplified version पढ़ना है. So let's have a look. Different organisms use different ways to break down this glucose and on this basis हम respiration को divide करते हैं into two main types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen while anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Irrespective of the types, दोनों में ही पहला step common रहेगा. What is this first step? It is breaking down of glucose into
पायरुवेट। ये प्रोसेस हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में होता है एंड ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यू कैन लुक एट द फॉर्मूला, इट इज C6H12O6। इसका मतलब इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज नोन एज पायरुवेट। इस प्रोसेस के साथ थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये पहला स्टेप है एंड इसकी वजह से पायरुवेट फॉर्म हो जाता है। ये पायरुवेट डिफरेंट पाथवेज में डिफरेंट वेज में ब्रेक डाउन होगा। पहले तो हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। Aerobic respiration is more common than anaerobic respiration and it is seen in us human beings. We human beings break down this pyruvate in the presence of oxygen. Pyruvate अभी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे साइटोप्लाज्म में। ये पायरुवेट अब मूव करेगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को हम ब्रेक करते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस and along with carbon dioxide water is also formed. Another way of breaking down this glucose is in the absence of oxygen and this is known as anaerobic respiration. I have told you earlier कि first step दोनों में ही common होता है, so that means कि यहाँ पर भी glucose पहले break होगा into pyruvate and जो कि हो रहा है साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक की स्टोरी दोनों में सेम है, both aerobic and anaerobic respiration. Now let us study more about anaerobic respiration by comparing it with aerobic respiration. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर एज anaerobic respiration takes place totally in the cytoplasm of the cell. अब आते हैं हम what are the final products of respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है इनटू अ अल्कोहल विच इज नोन एज इथेनॉल। सो दिस इज आवर सेकेंड डिफरेंस। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो भी इसी डिफरेंस से निकलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू CO2। CO2 एक 1 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब कि यहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक हो रहा है। सो वी कैन से दैट ग्लूकोज इज गेटिंग कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कमिंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, हियर ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, यानी कि इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड। दैट मीन्स कि ग्लूकोज के सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं एंड हेंस ग्लूकोज इज गेटिंग ओनली पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ओवर हियर। नाउ वी नो फ्रॉम केमिस्ट्री कि जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक होता है, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सम एनर्जी इज स्टिल लॉक्ड इनसाइड द इथेनॉल मॉलिक्यूल, so the energy released over here is way less. In fact, only 1/10 of the energy gets released in anaerobic respiration compared to aerobic. Final difference is कि aerobic respiration is seen in most of the organisms, while anaerobic respiration occurs only in some organisms like yeast. These organisms are known as anaerobes. ईस्ट में हम इस प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के कई सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं सच एज मेकिंग ब्रेड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं? पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड होता है इथेनॉल। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसके बबल्स मेक द डो राइज
एंड इसकी वजह से जो हमारी ब्रेड्स बनती हैं दे आर फ्लफी एंड स्पंजी। सेकेंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है। इसी वजह से हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं इन मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज बियर एंड वाइन। क्लियर? अब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में होता है। When we do exercises, हम अपनी मसल्स को मूव करते हैं, यानी कि we do muscular contractions। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन टर्न रिक्वायर्स ऑक्सीजन। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं वी टेंड टू ब्रीथ फास्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचानी होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी। नाउ कंसीडर अनदर सिचुएशन। जब हम हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम सच एज फास्ट रनिंग या फिर लिफ्टिंग हेवी वेट्स, तब क्या होता है, इन दिस सिचुएशन हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनफ ऑक्सीजन फॉर इट। इस केस में बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर देती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इस वक्त हमारी बॉडी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट वी कांट डू एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है बिकॉज हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं है टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। इस वजह से एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी मसल सेल्स में होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होता है देन इट लीड्स टू मस्कुलर क्रैम्प्स। इसी वजह से जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वी टेंड टू गेट मस्कुलर क्रैम्प्स। बाद में हमारी बॉडी इस लैक्टिक एसिड को ब्रेक करती है इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड टू मेक एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से वी गेट 38 ATP ऑफ एनर्जी, while in anaerobic respiration we get only 2 ATPs. So we'll be learning today first what is ATP, second how is ATP formed, and third how does ATP work. Now ATP stands for adenosine triphosphate. Adenosine because it contains a nitrogenous base called as adenine and a sugar. Triphosphate because it contains 3 phosphate groups. Now you might remember कि ATP is known as the energy currency of the cell. Why is it called so? एक एग्जाम्पल से समझो, अगर हमें एक चॉकलेट बाय करनी है तो हमें मनी स्पेंड करना होगा। उसी तरह से अगर हमें एनर्जी बाय करनी है तो हमें ATP स्पेंड करना होगा। Coming to the second question, how is ATP formed? So here is an equation. ATP is formed from ADP and inorganic phosphate. ADP is adenosine diphosphate. That means it has 2 phosphate groups. So if we add an inorganic phosphate to ADP, it will give us ATP. You can see that this process requires energy. And this energy is provided to us by cellular respiration. In other words, we can say कि जो भी energy respiration में release होती है, that is stored in the form of ATP. The third question was, how does ATP work? जब भी हमारी body को energy की requirement होती है, be it for growth or for muscle contraction, हमारी body इस terminal phosphate group को break करती है from ATP. ATP के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, तो जो टर्मिनल है लास्ट फॉस्फेट ग्रुप है उसको हमारी बॉडी ब्रेक करती है यूजिंग वाटर टू फॉर्म ADP एंड फॉस्फेट. दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज ब्रोकन, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड. Moving to the last topic for today, which is the difference between photosynthesis and respiration. A question came in your board exams which says, state the basic difference between photosynthesis and respiration.
दिस हैज़ कम फॉर 1 मार्क्स, बट हम यहाँ पर सारे डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेयर। So photosynthesis occurs only in the green parts of the plant, while respiration takes place in all living cells, be it plants or animals. So we can say कि plants में भी respiration होता है। Second question is when. So photosynthesis occurs only in daytime, while respiration occurs throughout the life of organism. Third question is energy. So in photosynthesis, energy is formed because we form glucose over here, and in respiration, energy is released by breaking down glucose. CO2 and water is used in photosynthesis, while the opposite occurs in respiration. Carbon dioxide and water are released over here. Food and oxygen is used to produce carbon dioxide and water as products. This occurs in the mitochondria, whereas photosynthesis process occurs in the chloroplast of the plants. So we can say that in photosynthesis glucose is formed in the chloroplast, and this glucose is used in respiration to release energy in the mitochondria. कैसा लगा आपको नया वीडियो फ्रॉम द लर्निंग सेल? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और दबा दो बेल।